عید منائی جا رہی ہے۔ رمضان کا مہینہ پورا ہونے پر شوال کی پہلی تاریخ کو عید منائی جاتی ہے۔ مسجدوں اور عیدگاہوں میں عید کی نماز ادا کی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر اور لداخ میں چھوٹی بڑی مسجدوں اور عیدگاہوں میں روح پرور مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ مسجدوں عیدگاہوں میں نماز ادا کرنے والوں کی بھاری بھیڑ امڑ رہی ہے۔ دیش دنیا میں امن، امان، بھائی چارے اور خوشحالی کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو منظر ہر طرف خوشنما ہے۔ عبادتوں کا، دعاؤں کا سلسلہ ہر طرف جاری ہے۔ چھوٹی بڑی مسجدوں میں، عیدگاہوں میں، جموں کشمیر اور لداخ میں نماز ادا کی جا رہی ہے، عبادتیں کی جا رہی ہیں، امن و چین کی دعا کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو عید مبارک گلے لگا کر کہا جا رہا ہے۔ جموں سے راجن وید اور شری نگر سے سروش ہمارے سہیوگی سی خبر پر جڑ گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو سروش، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ اور کس طرح کا منظر آج کشمیر میں دیکھنے کو مل رہا ہے؟ رمضان ختم ہو گئے ہیں اور ہر طرف خوشحالی نظر آ رہی ہے سروش؟ بالکل بالکل جیسمین، آپ کو بھی عید مبارک شری نگر کی پوری ٹیم کی طرف سے۔ آپ کو بتائیں اس وقت ہم شری نگر کی سنوار کی مسجد میں ہیں یہاں پہ، اور کافی زیادہ بھیڑ ہے اس وقت۔ جیسا آپ نے بالکل صحیح فرمایا، ابھی کی رمضان کا مہینہ تھا، ابھی رمضان رکھنے والوں کی عید ہوتی ہے یہ، اور کہیں نہ کہیں یہ جو رمضان کے 30 دن ہوتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں کئی سارے ایسے ویلیوز ہیں جن کو لے کے پریچنگ ہوتی ہے۔ سیکریفائس کے بارے میں آپ بات کریں، چیریٹی کے بارے میں، اور باقی چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کو ایک بہتر انسان بناتی ہیں۔ تو اس ایک مہینے کے رمضان کے بعد آج یہاں پہ عید منائی جا رہی ہے۔ کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو تمام کونوں سے اس وقت یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں سنوار کی مسجد میں، اور سب کافی زیادہ خوش ہیں، اور پیغام یہی ہے سب لوگوں کا کہ کہیں نہ کہیں جو اس وقت پوری دنیا میں جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کیوس ہے، مختلف قسم کا کیوس ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ایک ٹھہراو آئے، اور کہیں نہ کہیں امن شانتی جو ہے وہ نہ صرف کشمیر میں لیکن پورے دنیا میں کہیں نہ کہیں وہ پیغام پہنچے۔ اور یہاں پہ جاسمین کوشش کریں گے، آپ سے کچھ لوگ ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرنے کی، وہ بہتر بتا پائیں گے۔ نام بتائیں آپ اپنا۔ پیر غلام حسن۔ اچھا حسن صاحب، یہ بتائیے یہ جو عید ہے آج، رمضان کی 30 دن تھے، روزے رکھنے والوں کی عید ہے آج، فضیلیت کیا ہے اس عید کی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ روزے جو ہیں 30 دن کے روزے، یہ ایک بندہ جو ہے رات دن گناہ بھی کرتا ہے، ثواب بھی کرتا رہتا ہے نا جی، گناہ وہ ثواب کرتا رہتا ہے۔ یہ روزے اسی لیے ہے تاکہ اس کے اللہ تعالیٰ نے یہ سبب رکھا ہے، فضل و کرم رکھا ہے اپنے بندے کے لیے، مسلمان بندے کے لیے، تاکہ یہ روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے سے جو ہے اس کے گناہ دھل جائیں گے، یہ صاف و پاک ہوگا، صاف و پاک ہو جائے گا۔ اور یہ بتائیے آپ کا پیغام کیا رہے گا اس عید؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے اس وقت کہیں نہ کہیں غفلت میں ہے، کہیں نہ کہیں پریشانیوں میں، جنگ ہے، طوفان مچ رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک پیغام کیا رہے گا آپ کا اس عید؟ اگر انسان اصل صحبت میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اس کا وہ جنگ و جدال میں نہیں رہے گا، وہ نیکیوں میں نیک ہی بنے گا، نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا نیک ہی بنے گا، جنگی لوگوں کے ساتھ رہے گا تو جنگی بنے گا، ہاں چرس نوشی لوگوں کے ساتھ رہے گا تو چرس نوشی بنے گا، وہی سیکھے گا، جی سروش، ہے نا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے سے جو کوئی آدمی ڈاکٹری سیکھتا وہ ڈاکٹر ہی بن جاتا، اس کو ڈاکٹر صاحب ہی بولتے ہیں، ہے نا جی۔ اس کا معنی اسی طرح ہے، قرآن میں بھی اسی طرح اس کا معنی ہے، سب آیات مبارکوں میں۔ ہاں جی، دیکھا آپ نے کس طریقے سے اپنی اپنی عید رہتی ہے، دیکھیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی جو پریشانی۔ جی بالکل بالکل سروش، میں آپ کے پاس آؤں گی لوٹ کر واپس۔ راجن جموں سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ راجن، جموں میں بھی آج عید کا تہوار منایا جا رہا ہے اور آپ کے پیچھے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ پا رہی ہوں جو عبادت کرنے، نماز ادا کرنے پہنچے مسجدوں میں۔ ذرا بتائیے، ان سے بات چیت کیجیے کہ کیا وہ محسوس کر رہے ہیں اور آج کتنا خاص دن ہے ان کے لیے۔
जी जास्मीन, देखिए कि मुकद्दस रमज़ान का महीना मुकम्मल हुआ है और अब आज ईद है और आज ईदगाह जम्मू में नमाज अदा की गई और हमारे साथ ग्रैंड मुफ्ती इनायतुल्लाह कासमी साहब मौजूद हैं, इन्होंने यहाँ पे नमाज अदा करवाई। सब हकीकतमंदों को इनसे ही बात करेंगे। आज आपने एक मैसेज दिया, यहाँ से पैगाम दिया खुशहाली का, शांति का, भाईचारे का, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम तमाम इंसानों को और दुनिया में बसने वाले लोगों को इस मुबारक और पवित्र दिन के अंदर मुबारकबाद पेश करेंगे। जैसे कि पूरा महीना रमज़ान मुबारक का खुशहाली में, इबादत में, लोगों के साथ गमखारी और गरीबों की मदद करने में गुजर जाता है, आखिर में ईद के दिन जब अल्लाह की तरफ से इनाम मिलने वाला होता है, इस दिन भी हम लोगों से यही अपील करते हैं कि जैसे इस मुबारक और पवित्र महीने के अंदर हम गरीबों की, यतीमों की, मिस्कीनों की खैर खाई रखते हैं, उनकी खबरगिरी रखते हैं, और आज ईद के मौके पर हम बग़ैर किसी मज़हब, कौम, मिल्लत के एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ गले लगते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, पानी तकसीम करते हैं। जैसे कि जम्मू के गली कोचों के अंदर आप देखेंगे दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने मुसलमानों के लिए पानी का और मिठाइयों का और दीगर चीज़ों का इंतज़ाम किया है। हम अपने मुसलमान भाइयों से भी और दीगर लोगों से भी यही कहते हैं कि भाई जैसे हम इन दिनों, बड़े दिनों, त्यौहारों के मौके पर एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ मिलते हैं, हम सारी ज़िंदगी ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ गुजारें, और इसके लिए हम दुआगो भी रहते हैं और लोगों से ये अपील भी करें। इस दफ़ा नवरात्रि फेस्टिवल और ईद इकट्ठे आए हैं, आपको लगता है कि चाहे कोई भी जहाँ हो, मैसेज एक ही है मोहब्बत का? यकीनी तौर पर हर मज़हब वाला यही चाहता है कि एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर हम जम्मू की बात करेंगे। जम्मू में पहले से एक रीत चली हुई वाली है कि जिस भी मज़हब का कोई बड़ा दिन, कोई त्यौहार होता है, तो दूसरे मज़हब वाले बढ़ चढ़ कर उनकी खुशी में जैसे भी उनसे हो सकता है वो शरीक रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कहीं पानी पिला रहा है, कोई हलवे खिला रहा है, कोई पूड़ी खिला रहा है, कोई और काम कर रहा है, तो यकीनी तौर पर एक दूसरे की खुशी और त्यौहार वाले दिनों में जैसे हम शरीक रहते हैं, हम उम्मीद रखेंगे पूरी दुनिया और हिंदुस्तान और ख़ास तौर पर जम्मू के अंदर जो रिवायत चली हुई आ रही है ये इंशाल्लाह बरकरार रहेगी। हम इसकी उम्मीद भी करेंगे और लोगों से इसकी अपील भी करते रहेंगे। किस तरह से रहने वाला आगे जो सेलिब्रेशन है ईद का? यकीनी तौर पर जैसे यहाँ नमाज हो जाती है, नमाज के बाद एक दूसरे के साथ मिलना, घरों में जाना, यार दोस्तों के पास जाना, ये तकरीबन पूरे दिन चलता रहता है। बल्कि कहीं गिफ्ट लेकर जाएंगे, कहीं बैठेंगे, कहीं खाना खाएंगे, तो समझे ये पूरा दिन एक खुशी के माहौल में गुजरता है। तो अल्लाह करे कि हम ऐसी ही खुशी खुरम ही जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं। बिल्कुल बिल्कुल राजन, जिस तरह से इन्होंने एक पैगाम दिया और ये कहा कि हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब का जो है ये जम्मू ने हमेशा से मिसाल पेश की है। आप राजन, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी वापस, और एक बार श्रीनगर का दोबारा रुख कर लेते। रईस हमारे सहयोगी दरगाह हजरत बल से इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। रईस, हजरत बल दरगाह में भी लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है, नमाजें चल रही हैं, यहाँ पर इबादतें चल रही हैं। जरा तस्वीरें साझा करें और बताएं किस तरह के इंतजाम और क्या तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ज़ाहिरीन की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ नमाज के लिए आई हुई है, और यहाँ पे वक्फ बोर्ड की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं, और यहाँ पे टेंट लगाए गए हैं। जिस तरह से कल वक्फ बोर्ड की जो चेयरपर्सन है दरख्शा इंद्रावी ने भी कहा था कि यहाँ पे हमने मैटिंग का इंतजाम किया है, और इसके साथ साथ पहले लोग यहाँ पे घास पे नमाज पढ़ते थे, लेकिन इस बार खास इंतजाम है और लोग जो है मुख्तलिफ अजला से यहाँ पे जो है वो नमाज के लिए आते हैं। बता दें कि दरगाह हजरत बल श्राइन जो है सबसे बड़ा मेजर श्राइन कश्मीर के श्राइनों में इसका शुमार होता है, और यहाँ पे जो कश्मीर के VIPs होते हैं, पॉलिटिशियन बड़े बड़े होते हैं, वो यहाँ पे नमाज के लिए आते हैं। और यही वजह है कि ये दरगाह खास है, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिरीन की सबसे बड़ी तादाद जो है वो कश्मीर में पाई जाती है। अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी भी लोग जो है वो आ रहे हैं। 10:30 बजे यहाँ पे नमाज होगी, तो बड़ी तादाद में जो है वो लोग इस दरगाह का रुख कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से हमने कल भी लोगों से बात करी तो उनका यही कहना है कि ईद जो है वो भाईचारे का दर्ज देती है, आपसी जो भाईचारा है उसको बनाए रखने की दर्ज देती है, और साथ ही साथ वो लोग जो नीडी है, जो गरीब है, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता, उनका भी ख्याल रखें। क्योंकि जो यहाँ के इस्लामिक स्कॉलर्स है, जो उलमा है, उन्होंने भी लोगों से को एडवाइस किया है कि ईद जो है वो सादगी से मनाए, अपने अड़ोस पड़ोस में जो लोग नीडी है, जो पुअर है, उनका खास ख्याल रखें, और साथ ही साथ आपसी भाईचारा जो है वो बना रहे। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जो है वो मुसलमानों
खानों के साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो एक अच्छी जो है एक बड़ा साइन है। और यहाँ पे हम श्रीनगर में देख रहे हैं कि दरगाह हजरत बल के पास लोगों से हमारी बात हुई तो काफ़ी उत्साह है और लोग काफ़ी खुश है और दुआ कर रहे हैं कि ये ईद जो है उनके लिए बाइस मसरत हो। और इसके साथ साथ इसको ईद के मौके पे जो है पूरा कश्मीर समेत पूरा मुल्क जो है वो उसमें अमन हो, तरक्की हो और लोग जो है वो खुशहाली से रहे। बिल्कुल बिल्कुल रईस, और इसी के साथ सरोज, राजन और रईस हमें ये जानकारियां दे रहे थे। सरोज, आप कुछ बात कर रहे हैं बच्चों के साथ, बताइए जरा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आप नाम बताएं। सफान। अच्छा ये बताओ क्या करोगे आप इस ईद पे? इस ईद पे जो मैंने यहाँ पे थोड़ा यहाँ मस्जिद में जाना है हमें, और फिर उसके बाद इफ्तारी होना है। पटाखे फोड़ोगे आप? हाँ। हाँ। और मैं फिर उसके बाद कुछ खाना, फिर उसके बाद कांदी खाऊंगा। कांती खाओगे आप उसके बाद? फिर उसके बाद चलो विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी ईद। तो जैस्मिन देख रहे हैं आप किस तरीके से न सिर्फ यहाँ के बड़े लोगों में जो बच्चे हैं उनमें भी काफी ज्यादा उत्साह है। और कहीं ना कहीं जो ये ईद है, अब रमजान का महीना खत्म हुआ है, यहाँ पे स्प्रिंग की भी आमद हुई है और कहीं ना कहीं गर्मियां आ रही हैं, पॉलिटिकल गर्मियां भी चल ही रही हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त काफी ज्यादा सरगर्मियां हैं। तो उस सब के बीच में कहीं ना कहीं आज ईद का आना यहाँ पे कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत ही खुशाइन खबर और एक बहुत ही सुकून की खबर है। उम्मीद करते हैं कि आप सबकी भी ईद जो है वो बहुत पीसफुल और पुरअमन रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सरोज। और राजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से। जी राजन, आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं और कुछ संदेश भी देना चाहते हैं, जरा बातचीत भी करें उनसे। बिल्कुल, ये संदेश चाहते हैं देना और समूचे जो है देश को भी चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के हवाले से। और इन्होंने अभी ये भी बात कही कि अब जम्मू कश्मीर के हालात बदल चुके हैं और जो खौफ का माहौल था वो ख़त्म हो चुका है और बहुत ही खुशी के साथ आज ईद मनाई जाती है। देखिए, ईद उल फितर के सबसे पहले मैं इस मकसद दिन पर तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये ईद हर साल खुशियों का पैगाम लाए। दरअसल इस ईद का मकसद ये है कि इसमें रोज़े रखे जाते हैं, 1 महीने के इबादत की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाती है और गरीब लोग जो हैं, बेवा यतीम लोग जो हैं, उनकी मदद की जा सकती है। जिनके पास सोर्स नहीं होता, हम इसमें यही है कि उनके लिए जिस तरह आदमी अपने लिए बच्चों के लिए कपड़े खरीदता है, इसलिए उन लोगों की, गरीब लोगों की भी मदद करो ताकि इस दिन पर वो भी अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद सकें और खाने पीने की जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो दूसरों की मदद की जाए। और आप क्या कहेंगे, कितने हालात बदल चुके हैं, आज बहुत ही खुशनुमा माहौल में जो है ईद की नमाज अदा हुई। पहली दफा तो मैं तमाम अहल इस्लाम को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक करता हूँ, खास कर के जम्मू कश्मीर के लोगों को ईद मुबारक करता हूँ। जो यहाँ पर इस वक्त जो ये अमन अमान, खास कर के जो माहौल ठीक रहा है और ये हम पूरे जो यहाँ का प्रशासन है, चाहे वो LG इंतज़ामिया है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो आपको पता था हमारे रियासत में खून खराबा हर वक्त रहता था। पिछले मुझे लग रहा है 2-2.5 सालों से माहौल बिल्कुल साजगार रहा है और लोग इसमें बड़े खुश हैं और लोग एक दूसरे को, आज उनको पता चला कि आज माहौल ठीक है, एक दूसरे के जो हमारा भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा। राजन, गंगा जमुनी तहजीब का परिचय यहाँ पर देते हुए आज जम्मू कश्मीर में ईद मनाई जा रही है, हर तरफ इबादतें हो रही हैं, नमाजें हो रही हैं और लोगों में खुशी का माहौल है। रईस, सरोज और राजन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और ये तस्वीरें और जानकारियां साझा करने